ਨਮਸਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 77ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਮਰ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ। BSF ਦੇ DG ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। 77ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 75,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी, लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 13 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक योजना लेकर के आ रहे हैं और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਸਮਰ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। इस मौके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना मुखी जनरल मनोज पांडे, जल सेना मुखी एडमिरल आर हरी कुमार ते हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी हाजिर सन। मुख मंत्री भगवंत मान ने आज़ादी दिवस मौके पटियाला विच होए सूबा पद्धरी समागम विच झंडा लहराया। इस दौरान उन्होंने मुख सकत्तर अनुराग वर्मा ते DGP गौरव यादव दे नाल परेड का निरीखण किया। इस मौके बोलदे मुख मंत्री ने कहा कि शहीद होने वाले ज्यादातर पंजाबी सन। पंजाबियों ने देश नूं आज़ाद करवाया ते वो इस आज़ादी नूं बरकरार रखना चाहते हैं। समागम दौरान वख-वख स्कूलों, कालजां ते यूथ क्लबां दे नौजवानों ने सभ्याचारक प्रोग्राम पेश किए। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ। आज़ादी दिहाड़े मौके जलंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम विच करवाए गए समागम दौरान पंजाब विधान सभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने कौमी झंडा लहराया ते मार्च पास्ट का निरीखण किया। वख-वख स्कूलों ते कालजां दे विद्यार्थियों ने सभ्याचारक वंगियां पेश कीतियां। इस तों पहलां वख-वख स्कूलों के विद्यार्थियों ने शानदार PT शो का प्रदर्शन भी किया। देश की आज़ादी मौके अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम विच करवाए गए समागम दौरान खजाना, टैक्स ते आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके बोलदियां उन्होंने कहा कि आज़ादी घुलाटियां ते कौमी नायकों के सत्कार विच हर जिले विच शहीदी स्मारक बनाए जाणगे। समागम दौरान उन्होंने मार्च पास्ट तो सलामी लई ते लोड़वंदां नूं ट्राईसाइकल ते मशीनां तकसीम कीतियां। इस दौरान शहीदां दे परिवारां नूं भी सन्मानित किया गया। फाजिलका दे बहुमंतवी शहीद भगत सिंह खेड स्टेडियम विखे आज़ादी दिहाड़ा बड़े उत्साह नाल मनाया गया। स्थानक सरकारां बारे मंत्री बलकार सिंह वल्लों कौमी झंडा लहराया गया। लोकां नूं संबोधन करदिआं बलकार सिंह ने देश की आज़ादी विच योगदान देण वाले शहीदां नूं नमन किया। इस मौके बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। आज़ादी घुलाटियां दे परिवारक मैंबरां नूं उचेचे तौर ते सन्मानित किया गया। इस तों पहलां कैबिनेट मंत्री ने फाजिलका दे पिंड आसफवाला विच बने शहीदां दी यादगार ते जाके उन्हां नूं सूबा वासियां वल्लों शरधा दे फुੱਲ भेंट कीते। आज़ादी दिहाड़े मौके तरनतारन पुलिस लाइन ग्राउंड विच समागम करवाया गया। इस मौके कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने राष्ट्रीय झंडा लहराउण दी रस्म अदा कीती ते परेड दा निरीखण किया। पंजाब पुलिस दे जवानां, पंजाब पुलिस महिला पलटून, पंजाब होमगार्ड, NCC कैडेटां वल्लों शानदार मार्च पास किया गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। संगरूर के पुलिस लाइन स्टेडियम विच 77वें आज़ादी दिवस मौके करवाए गए समागम दौरान जल स्रोत, खाणा, खेडां ते युवक सेवावां मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने कौमी झंडा लहराया ते परेड तो सलामी लई। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा कि यह आज़ादी हासिल करने लई वड्डी गिणती विच देश भगतां ते आज़ादी घुलाटियां ने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां ने। इस मौके उन्होंने आज़ादी घुलाटियां दे वारसां नूं सन्मानित किया। समागम दौरान लोड़वंदां नूं सिलाई मशीनां ते दिव्यांग व्यक्तियां नूं ट्राईसाइकल भेंट किए गए। वख-वख स्कूलों के विद्यार्थियों ने इस मौके रंगारंग प्रोग्राम पेश किए।
77वें आज़ादी दिवस मौके पठानकोट विच करवाए गए समागम दौरान बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कौमी झंडा लहराया ते परेड का निरीखण किया। इस मौके बोलदियां कैबिनेट मंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर नूं याद किया ਅਤੇ 77वें आज़ादी दिहाड़े ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। इस मौके स्कूली बच्चों ने सभ्याचारक ते देश भगती ते आधारित प्रोग्राम पेश किया। NRI मामलिਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ITI ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। आज़ादी दिहाड़े मौके मानसा के नेहरू मैमोरीयल सरकारी कॉलेज के बहुमंतवी खेड स्टेडियम में किरत सैर सपाटा ते सभ्याचार मामलों बारे मंत्री अनमोल गगनमान ने कौमी झंडा लहराया ते परेड तो सलामी लई। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा कि मानसा की धरती लोक लहरां नूं जन्म देने वाली पवित्र धरती है। इस दौरान उन्होंने जिले दीयां बालड़ियां वल्लों सिक्ख्या ते खेडां विच कीते गए शलाघायोग प्रदर्शन का भी जिक्र किया। इस मौके उन्होंने सुतंत्रता सैनानियां ते चंगे कारजां लई नामना खट्टण वालियां दा सन्मान भी किया। कपूरथला के गुरु नानक स्टेडियम में आज़ादी दिहाड़े मौके करवाए गए समागम दौरान डिप्टी कमिश्नर कैप्टन करनैल सिंह ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके बोलदियां उन्होंने देश की एकता ते अखंडता नूं बरकरार रखण लई कुर्बानियां देण वाले देश भगतां आज़ादी घुलाटियां ਵੱਖ-ਵੱਖ हथियारबंद फौजां दे शहीदां नूं नमन किया। उन्होंने नौजवान पीढ़ी नूं सद्दा दिता कि देश की तरक्की ते खुशहाली विच होर भी वध चढ़ के अपना योगदान पाउंदिआं समाजिक बुराइयां दे खात्मे दा अहद लैण। गुरदासपुर के शहीद लैफ्टिनेंट नवदीप सिंह खेड स्टेडियम विखे 77वां आज़ादी दिहाड़ा मनाया गया। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कौमी झंडा लहराया ते परेड का निरीखण किया। अपने संबोधन दौरान कैबिनेट मंत्री ने आज़ादी दिहाड़े ते सारे देशवासियों नूं वधाई दित्ती ते देश की आज़ादी लई अपना बलिदान देण वाले शहीदां नूं नमन किया। सीमा सुरक्षा बल के डायरैक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने अटारी वाघा सरहद ते रिट्रीट सैरेमनी मौके आज़ादी दिहाड़े के संबंध में करवाए गए विशेष समागम में हिस्सा लिया ते सरहदां की राखी कर रहे जवानों का हौसला वधाया। इस दौरान अमृतसर के स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों ने देश भगती के गीतों पर आधारित रंगारंग प्रोग्राम पेश करके माहौल नूं जोश भरपूर बना दिता। विद्यार्थियों वालों पेश किए जा रहे रंगारंग प्रोग्राम दौरान हज़ारों की गिनती में मौजूद दर्शकों का उत्साह देखने वाला सी। इस दौरान BSF के DG ने देश सेवा लई तनदेही नाल काम करने वाले जवानों नूं सन्मानित भी किया। एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर विखे मेरी माटी मेरा देश मुहिम तहत समागम करवाया गया। आज़ादी के 75 साल पूरे होने मौके आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत 9 तो 15 अगस्त तक एयरफोर्स स्टेशन विखे ਵੱਖ-ਵੱਖ समागम करवाए गए। इस दौरान 11 अगस्त को पिंड माणको ਅਤੇ चोमो विखे वसुधा वंदन तहत देसी नस्ल के 75 बूटे लगा के अमृत वाटिका विकसित की गई। इस दौरान पिंड माणको के आज़ादी घुलाटियां नूं वीरां दा वंदन तहत सन्मानित भी किया गया। इस दौरान तीनों सेनावां केंद्रीय ਅਤੇ सूबा पुलिस के रिटायर्ड कामियां नूं सन्मानित किया गया। 14 अगस्त को पंच प्राण तहत सौं चुकाई गई जिस विच इलाके के लोगों ने वड्डी गिनती में हिस्सा लिया। 15 अगस्त को एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर के एयर अफसर कमांडिंग एयर कमांडर AK चौधरी ने कौमी झंडा लहराया। इस समागम नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला यूथ अफसर कुलविंदर ते कीर्ति कांत के तालमेल नाल करवाए गए जिस विच स्टेशन के कर्मचारियों उन्हां दे परिवारक मैंबरां इलाका निवासियों ते पंचायत मैंबरां वल्लों वध चढ़ के हिस्सा लिया गया। एयरफोर्स स्टेशन राजा सांसी विखे आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत करवाए गए मेरी माटी मेरा देश मुहिम तहत 9 तो 15 अगस्त तक
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰੂ युवा केंद्र संगठन के जिला युवा अफसर कुलविंदर कौर ने दस्सिया कि 10 अगस्त को नगर पंचायत राजा सांसी विखे वसुधा वंदन तहत देसी नस्ल के 75 बूटे लगा के अमृत वाटिका का विकास किया गया। मगरों पंच प्रण की सौं भी चुकी गई, जिस विच इलाका निवासियों ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। इस लड़ी तहत करवाए गए वीरों का वंदन के हिस्से वजों देश के सुतंत्रता सैनानियों को सन्मानित किया गया। 15 अगस्त को करवाए गए विशेष समागम दौरान कार्यकारी इंजीनियर जगतार सिंह ने कौमी झंडा लहराया। इन्हां सरगर्मियां स्टेशन के समूह कर्मचारियों, उन्होंने परिवारक मैंबरां, इलाका निवासियों ते पंचायत मैंबरां ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक आ रहे न्यू DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। ते बुलेटिन के अंत में चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें आज़ादी दिहाड़े मौके आज़ादी लई कुर्बानियां देण वालियां नूं कीता याद। देश दीआं औरतां लई लखपति दीदी अते कारीगरां लई विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू करन दा कीता ऐलान। 2047 तक विकसित भारत दे सुपने नूं साकार करन दी वचनबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौमी समर स्मारक विखे शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज़ादी दिहाड़े मौके पटियाला विच सूबा पद्धरी समागम विच कौमी झंडा लहराया। अटारी वाघा सरहद ते आज़ादी दिहाड़े मौके होया विशेष सभ्याचारक समागम। BSF के DG नितिन अग्रवाल ने जवानों का हौसला वधाया। ते इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।